गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में जो भी चीज़ हम देखते हैं वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, जैसे कि पेड़ पौधे, एक्स और एनीथिंग, जो भी हम देखते हैं वो सब मैटर में आता है। जिसने जिसने साइंटिस्टों ने जिसको नाम दिया है मैटर। मैटर मीन्स होता है पदार्थ। जैसे कि हमारा सौर मंडल है, उसमें भी पदार्थ हैं, इस प्रकार से। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर के साथ। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with a different shapes, size, and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, the stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. We can also see as look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. Since early time, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of these five basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशुएं, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन गिनती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय ये कानूनी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों का आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे।
पदार्थ रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। Matter is made up of particles. For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform activities to decide about the nature of matter. It is continuous for particulate. Activity 1.1. Take a 100 milliliter of water, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt sugar with the help of glass rod. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon? Salt or sugar. Now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. Illustrated in figure 1.1. पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह स्थित होता है, परंतु अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए क्रियाकलाप द्वारा पदार्थ के स्वरूप बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये तत्व या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप 1.1। 100 ml का बीकर लें। इसे बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को जांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल को स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? यह कहाँ गायब हो गया? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। How small are these particles of matter? The experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1,000 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. This same activity can be done using 2 ml of salt instead of potassium permanganate.
The smell can be detected even on repeated dilution. यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े में क्रिस्टलों से पानी बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर बेरंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विचलित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। Particles of matter have space between them. In activities 1.1 and 1.2, we show that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी particles of one type of matter get into the space between particles of other. This show that there is enough space between particles of matter. पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। 1.2 पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.6 एक्टिविटी 1.3 Put an unit incense stick in a corner of your class. How do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. अब देखिए इसमें ये जो एक्टिविटी 1.3 है, इसमें बोला गया है कि आप एक धूपबत्ती लीजिए, उसको बिना जलाए कहीं क्लास के कोने में रख दीजिए और अपने स्थान पर आगे बैठ जाइए। क्या आपको उसकी स्मेल आएगी? मैं पूछूंगी या कि हिंदी? और आपको अगर उसकी स्मेल आ रही है तो वो आपको कितने पास जाकर आ रही है। और इसके बाद वो बोल रहा है कि अगर आप उस धूपबत्ती को जला देते हैं तो आप कितनी दूरी से उसकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं।
आप कृपया अपनी ऑब्जर्वेशन को बताइए। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, जब भी अब जो मार्केट में बनी बनाई वो धूप बत्ती आ रही हैं, उनको जब भी हम जलाते हैं तो पूरे घर में सुगंध हो जाती है। जब वो सुगंध हो जाती है तो हम भले ही अपने घर के बिल्कुल लास्ट में बैठे हो और धूप बत्ती गेट पर चल रही हो, तो उसकी सुगंध भी हमको आ जाती है। तो ये हमको ये प्रक्रिया बताना चाह रहा है इस वीडियो में।